Hello everyone, this is Prince and I welcome you all at Sahu's Learning Point. Today we are going to discuss class 12th NCERT textbook Flamingo chapter 3 Deep Water. Before we start with the chapter, let me read about the author. William Douglas. William Douglas, who was born in the year 1898 and died in the year 1980, was born in Maine, Minnesota. After graduating with a Bachelor of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. Douglas was a leading advocate of individual rights. He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. The following excerpt is taken from Of Men and Mountains by William O. Douglas. It reveals how, as a young boy, William Douglas nearly drowned in a swimming pool. In this essay, he talks about the fear of water and thereafter how he finally overcame it. Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. So, this was about the author. Fine. You know that the author was a teacher also, but very soon he left this occupation and joined as an advocate and then as an justice, the judge. Fine. And served in the history of the court, means about 36 years, which was the longest service in the history of the court. So this is an excerpt from his autobiographical experiences, fine, from his autobiography we can say. So this is an excerpt taken from the book of Men and Mountains written by William O. Douglas. So basically, if we talk about the chapter and its title, Deep Water. So deep water means when we talk about water when it is too deep. Okay. So without wasting much time, let me come to the text of the chapter. It had happened when I was 10 or 11 years old. So the incident which the writer is going to discuss had happened when he was about 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. तो राइटर ने, ऑथर ने, डगलस ने क्या डिसाइड किया कि वो तैरना सीखेगा, स्विमिंग सीखेगा. देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकीमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी एंड देयर वॉज अ पूल ऑल्सो at the YMCA in Yakima. So Yakima, you know, a place in Washington, USA. Okay. So Yakima में एक pool था YMCA which offered exactly the opportunity, जहाँ आपको अच्छे से वो opportunity offer होती थी and the opportunity of learning to swim. The Yakima River was treacherous. So treacherous means, underline this word please. ट्रैकरस मीन डेंजरस. सो याकीमा रिवर जो थी वो डेंजरस थी. मदर कंटिन्यूली वार्नड अगेंस्ट इट. तो मदर तो हमेशा से ही वार्न करती थी नॉट टू गो देयर. अगेंस्ट इट मीन्स नॉट टू गो टू दी याकीमा रिवर. एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर. और रिवर में जो डूबने की, ड्राउनिंग की जो इंसिडेंट्स होती थी वो उसके माइंड में फ्रेश रखती थी. कौन कौन बंदे वहाँ डूबे, कैसे उनकी डेथ हो गई. मीन्स इन ऑर्डर टू डिवेलप अ फियर ऑफ समथिंग, ताकि उससे बच्चे डरें और वहाँ ना जाएं. बट द YMCA पूल वॉज सेफ. पर YMCA पूल जो था वो सेफ था. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end
and while it was 9 feet deep at the other. तो as you know that a swimming pool has two different ends, shallow end जो कम गहरा होता है and deep end जो ज़्यादा गहरा होता है rather than the shallow end. So and while it was 9 feet at the other, तो आपको पता चल गया कि जो कम वाला गहरा था वो था 2 और 3 फीट, 2-3 फीट गहरा था. एंड वाइल द अदर जो डीप वाला एंड था इट वॉज अबाउट 9 फीट डीप, 8 और 9 फीट डीप, समथिंग लाइक दैट ओनली. तो इतना गहरा वो था. ओके, आई होप यू आर वेरी क्लियर टिल हेयर. लेट वी कंटिन्यू. द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल. अब जो ढलान था दोनों एंड का, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, वो जो ढलान थी दैट वाज ग्रेजुअल. ग्रेजुअल मीन धीरे धीरे होती थी, एकदम से नहीं थी, एक बैलेंस में थी. आई गोट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल. तो राइटर ने एक पेयर ऑफ वाटर विंग्स लिया और पूल पर चला गया. आई हेटेड टू वॉक नेकेड इन टू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स. तो राइटर को बड़ा बेकार लगता था जब वो नेकेड, नेकेड मीन्स विदाउट क्लॉथ्स, तो जब वो विदाउट क्लॉथ्स उस पूल में जाता था और अपनी स्किनी लेग्स. अब स्किनी लेग्स, वंस वी डिस्कस द वर्ड स्किनी, स्किन एंड स्किनी, व्हेन वी से स्किन इट्स अ डिफरेंट, इट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग, एंड व्हेन वी से स्किनी द मीनिंग गेट्स चेंज्ड. ओके, तो स्किनी मीन्स थिन, पतली, स्किनी आर्म्स, पतली बाजुएं, एंड स्किनी लेग्स, पतली पतली टांगे. So he did not like to go naked into the pool and show his skinny legs. अपनी पतली पतली टांगे दिखाना उसको अच्छा नहीं लगता था. But I subdued my pride and did it. पर उसने क्या किया, अपना जो प्राइड था, जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट थी, उसको सबड्यू किया. सबड्यू मीन्स, प्लीज अंडरलाइन दिस एंड नोट डाउन द मीनिंग. सबड्यूड इज टू सप्रेस, दबाना किसी चीज़ को. तो वो आत्मसम्मान, वो प्राइड उसने दबाया और वो पूल में गया. एंड डिड इट, फाइनली ही वेंट टू द पूल टू लर्न टू स्विम. याद रखना पर्पज़ क्या था, स्विमिंग सीखना. फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट. तो बिगिनिंग से ही जैसे कि उसको एक अवर्जन थी. अवर्जन मीन्स ग्रेट डिसलाइक और हेट, नफ़रत करना या पसंद ना करना. तो पानी को वो पसंद नहीं करता था बिगिनिंग से ही, जबकि वो उसमें होता था, जब भी वो पानी में होता था, ही डिड नॉट लाइक दैट वाटर. दिस स्टार्टेड, और ये अवर्जन, दिस डिसलाइक और दिस हेट, इट वॉज स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया. तो ये अवर्जन कब शुरू हुई, जब नरेटर जो थे वो 3 और 4 years की एज में थे और उनके फादर उनको लेकर गए एक बीच पे कैलिफोर्निया में. ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, आई हंग ऑन टू हिम, यट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी. सो वो दोनों सर्फ में खड़े थे. इन द सर्फ, इन द सर्फ मीन्स इन द वेव्स, लहरों में वो खड़े हुए थे दोनों इकट्ठे. आई हंग ऑन टू हिम, और वो अपने फादर को पकड़े हुए थे अच्छे से. बट फिर भी क्या किया, वेव्स ने उनको नॉक डाउन कर दिया. नॉक डाउन मीन्स नीचे गिराना. एंड स्वेप्ट ओवर मी, और उसके ऊपर से बह गई. आई वॉज बरीड इन वाटर. और राइटर जो थे, जो नरेटर है, वो जैसे पानी में बरीड हो गए हों, दब गए हों, पानी बिल्कुल उनके ऊपर से था. माई ब्रीथ वॉज गॉन, और जो ब्रीथ थी वो जा चुकी थी, सांस नहीं आ रहा था. आई वॉज फ्राइटन्ड, डरे हुए थे बिल्कुल. फादर लाफ्ड, फादर तो हंसे उसकी कंडीशन देखकर. बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स. अब जो ओवर पावरिंग फोर्स था, मतलब जो इतनी पावरफुल वेव्स थी, उस वेव्स की वजह से उसके जो मन में एक पानी का डर बैठ गया. ओके, सो दिस हैपेंड
व्हेन ही वॉज 3 or 4 years ओल्ड। ये इंसिडेंट कब का है? जब वो 3-4 साल का था। फाइन, आई होप यू आर वेरी क्लियर विद द इंसिडेंट कि उसको पानी से अवर्जन क्यों है। तो पानी से अवर्जन हुआ था जब वो 3 या 4 साल का था, अपने फादर के साथ गया बीच पे इन कैलिफोर्निया, एंड ही वॉज ओवरटर्न्ड बाय द वेव्स, और वेव्स ने उसको गिराया और उसके ऊपर से वेव्स निकल गई। फाइन, तो ये एक टेरर उसके माइंड में, उसके हार्ट में पानी के लिए बैठ गया। लेट वी कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर। तो जैसे ही वो YMCA पूल पे गया, उस पूल पर जाने के बाद उसकी जो अनप्लेजेंट मेमोरीज थी पास्ट की, वो रिवाइव हुई, रियलाइव हुई, एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स, और जो बचपन का जो फियर था, जो बच्चों वाला जो फियर होता है, वो दोबारा से उसको वापस आ गया। बट इन अ लिटल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। बट थोड़ी ही देर बाद उसने कॉन्फिडेंस गैदर किया, नरेटर ने। आई पैडल्ड विद माई वाटर विंग्स। सो वाटर विंग से जब उसने पैडल करना शुरू किया, वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। तो वो दूसरे लड़कों को देख रहा था और उनको एपिंग करने की कोशिश कर रहा था। व्हेन यू से एपिंग और टू एप समथिंग मीन्स टू कॉपी समथिंग और समवन। ओके, एपिंग मीन टू कॉपी। उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहा था, उनको सीख रहा था उनको कॉपी करके। I did this 2 or 3 times on different days, and I was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. तो उसने ये 2 या 3 बार अलग अलग दिनों में किया, और beginning to feel at ease. So feeling at ease, it means to feel relaxed. तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील होना शुरू हुआ पानी में, जबकि मिस एडवेंचर हुआ। तो एक और मिस एडवेंचर हुआ, उससे पहले थोड़ा सा उसको रिलैक्स फील होना शुरू हुआ था, बट वंस अगेन सम मिस हैपनिंग हैपेंड विद हिम। तो कुछ और हुआ। अब वो क्या हुआ? लेट वी सी, लेट वी रीड एंड फाइंड आउट। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर। तो जो नरेटर है वो पूल में गए जब वहाँ कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, बिल्कुल शांत जगह थी उस टाइम। द वाटर वॉज स्टिल, पानी भी ठहरा हुआ था, रुका हुआ था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब। और जो टाइल्ड बॉटम है, जो टाइल्स लगी होती हैं उसके स्विमिंग पूल के बॉटम पे, बिल्कुल नीचे तह में, तो वो बिल्कुल क्लियर थी, इतनी क्लीन और वाइट थी जितनी कि एक बाथ टब होती है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन। टिमिड मीन समथिंग और समवन फियरफुल, और दब्बू टाइप जिसको बोलते हैं, जो बड़े डरपोक टाइप होते हैं, दैट इज़ टिमिड। तो उसको डर लग रहा था कि अकेले मैं अंदर जाऊं या ना जाऊं। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल एंड वेट फॉर अदर्स। तो वो नहीं गया, डर के मारे अंदर नहीं गया, और पूल की साइड में बैठ गया और दूसरों का वेट करने लगा कि व्हेन समवन एल्स वुड कम ही वुड स्टार्ट डूइंग द सेम। एज वी नो दैट ही वॉज एपिंग देम, उनको कॉपी कर रहा था, देख रहा था। सो आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय। तो ज़्यादा टाइम मुझे नहीं हुआ था जब एक अच्छा हेल्दी और गुड फिजिक वाला लड़का आया, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, शायद 18 साल की उसकी एज होगी। एंड यू नो व्हाट वाज द एज ऑफ द नरेटर एट दैट टाइम? 10 or 11 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो जो लड़का आया, ही हैड अ गुड फिजिक एंड प्रोबेबली 18 ईयर्स उसकी एज थी। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, और अच्छे बाल थे उसकी चेस्ट पे। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन। और जब अच्छे फिजिकल पर्सन की बात होती है, जिनकी गुड फिजिक होती है, तो ही वॉज अ स्पेसिमेन टू देम, एक कॉपी था उनकी। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और अच्छी मसल्स थी उसकी, लेग्स, आर्म्स, ऑल इन ऑल वेरी गुड फिजिक ही वॉज हैविंग। ही येल्ड, येल्ड मीन्स क्राई, टू शाउट, शाउटिंग करना एक हिसाब से। सो ही येल्ड, हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड। तो उसको कहा कि हाई स्किनी मीन्स हे पतले आदमी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड,
कि कैसा लगेगा तुम्हें अगर तुम्हें पानी में फेंक दिया जाए। सो विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और ऐसा कहते हुए उसने मुझे उठाया और डीप एंड में, दैट वॉज 9 फीट डीप, वहाँ डीप एंड में उसने उसको टॉस कर दिया, मीन्स थ्रो कर दिया, फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, एज यू नो दैट ही वॉज सिटिंग देयर, तो उसी सिटिंग पोजीशन में ही बैठे बैठे ही वो लैंड करना शुरू किया पानी में। स्वेलोड वाटर, पानी उसने स्वेलो किया, अंदर जाना शुरू हुआ। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और एकदम से कहाँ पहुँचा, बॉटम में। आई वॉज फ्राइटन्ड बट नॉट येट फ्राइटन्ड आउट ऑफ माई विट्स, तो मैं डरा हुआ था बट इतना भी डरा हुआ नहीं था कि मैं सोच भी ना सकूं। मीन्स आउट ऑफ विट्स मीन्स जब आप सोचने समझने की जो पावर है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप, तो जैसे ही वो जा रहा था तो रास्ते में उसने क्या प्लानिंग की कि जैसे ही मैं बॉटम से हिट करूँगा, टकराऊँगा, मैं एकदम से ऊंची छलांग लगाऊंगा, बिग जंप करूँगा, कम टू द सरफेस, सरफेस पर आऊँगा, लाई फ्लैट ऑन इट, और इसके ऊपर लेट जाऊँगा पानी के ऊपर, एंड पैडल ऑन द एज ऑफ द पूल, और फिर पैडल करते हुए पूल के किनारे पर पहुँच जाऊँगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, बट ऐसा लगा जैसे मुझे नीचे जाने में बहुत टाइम लग रहा हो। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, और वो 9 फीट जो थे वो 90 से भी ज़्यादा लग रहे थे। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, और जैसे वो बॉटम को टच करता इतना पानी भर गया था जैसे उसकी लंग्स फटने वाली हो, बर्स्ट करने वाली हो। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, तो जैसे ही वो नीचे बॉटम से टच हुआ, हिट किया, उसने पूरी स्ट्रेंथ गैदर की और कोशिश की जो उसने सोचा था वो करने की, एक ग्रेट स्प्रिंग जंप करेगा ऊपर की तरफ। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, और मैं इमेजिन किया कि सरफेस पे कॉर्क की तरह तैरूँगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, पर फिर क्या हुआ, ऐसा होने की बजाय वो धीरे धीरे ऊपर आया। Fine, it was all for today, and rest we will discuss in our next video. I hope you are very clear till here. Thank you. Have a wonderful day.